Hello, hello, good evening, everybody. हेलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड विश यू आर डूइंग गुड। अच्छे होंगे आप लोग। जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभाकर यादव पीटी साहब, गुड इवनिंग साहब। लिमरा, गुड इवनिंग। आप सभी लोग सही से कनेक्ट हो जाइए। यस, माय वॉइस इज क्लियर। आवाज सही से आ रही है? वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद। Yes, very good evening to all of you. You are welcome in Allahabad University family. This is fourth or fifth lecture of English. I think you people are getting benefit of this particular class. From basic, from simple to complex, I am taking the class. Generally, it looks a very simple, but in roots it is something different. So how you will differentiate in your question paper, in your examination, if you don't have any rules and regulations of grammar, English grammar? I wish and hope that everybody will try to understand the real facts of English grammar in this class. Thank you, you are welcome. Everybody should be live again. Now I think it's very clear.
Is it clear? Voice is clear? Are you getting me properly? Yes, dear. This is the today's topic. Do you know what is the topic of today's? We have discussed article, we have already discussed noun and general introduction of the class. Today I am going to take a very competitive topic. वो टॉपिक है जो आपने बहुत कई बार देखा होगा और पढ़ा भी होगा. From 6th class you are studying this particular topic, but you are committing general mistakes. एक या दो नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से, और यूपीएससी की बात करें 1 या 2 नंबर का. अदरवाइज इन लोअर सबऑर्डिनेट क्लास सर्विसेज you will get 5 or 6 questions of this topic. It is very very important topic. The topic is active and passive voice. Active and passive voice. Is it clear? Are you getting it properly? क्लियर है? आप लोगों को दिख रहा है सही से? बोलिए भाई, गिव मी योर रिस्पांस. सही से दिख रहा है? बताइए. क्लियर? ओके तनु, थैंक यू. ओके, द टॉपिक this topic, voice. What is voice? VOIC, voice is the form of verb voice is the form of verb which indicates whether a person or thing, whether a person or thing does something. Whether a person or thing does something, or something has been done to a person or thing. Is it clear? This is the voice. If somebody will say what is voice, then how will say the voice is the form of a verb which indicates whether a person or thing does something or something has been done to a person or thing. Okay. Next, types.
टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस, और सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दो वॉइस होते हैं। Inactive, what is when a verb form, नोट करिएगा, when a verb form shows that verb form shows that the subject has done something. ओके, जहां पे दिया जाए कि सब्जेक्ट ने कुछ किया, सपोज शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, दिस इज द एक्टिव सेंटेंस. She is subject. This is the activity of writing. Verb, object. It is clear. The subject is doing something. And in passive voice, that is different. When a verb form shows, when a verb form shows, तो वर्ब की फॉर्म हमको ये बताती है that something done to a subject, something done to a subject. Trying to understand it very clear. When a verb form shows that something has done, okay, something has done to a subject. तो कोई चीज सब्जेक्ट के लिए की जाती है. इसी सेंटेंस को आप ले लीजिएगा. She writes a letter. A letter is written by her. और ये चेंज अभी तो हो गया, आप कहेंगे बहुत ही इजीली इट इज चेंजेस, बट इट हैज अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. These rules play a very dominant role in changing these voice types. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो चीजें आपकी क्लियर हुई कि एक्टिव वॉइस है क्या. व्हाट इज एक्टिव वॉइस? हम सभी पढ़ते हुए चले हैं, बट वी डोंट नो दैट व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस. Dear students, please note down this first, then we will proceed the class. Limra, it is wrong. A letter is written by her, not a letter written by her. Okay. Can I rub it? इसको मिटा दूं, आगे चलूं? Okay. Now you should know
the tenses. Active and passive voice depends on tenses. अगर आपको tense नहीं आते हैं, types of tense नहीं आते हैं, then you can't do active and passive voice. Tense. What is the meaning of tense? Tense means time. Generally you say present tense, past tense and future. ओके, टेंस की बात कर रहे हैं हम. व्हाट इज टेंस? एंड एवरी टेंस हैज इट्स फोर सब टेंसेस. प्रेजेंट, indefinite tense, present, continuous tense, present, perfect tense. And present perfect, present perfect continuous tense. Okay, these are 1, 2, 3, 4. In the same scenario, you should come in the past. This is past indefinite tense. Okay, past continuous tense, past perfect tense. Okay, past perfect continuous tense. Try to understand in short forms. These are also four. And in future, say future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. These are 12, 4 into 3. I think 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These are the 12 tenses. How will change? You should know. The first rule is this, that all tenses will be converted into passive voice except 4 tenses. Okay, the 4 tense present perfect continuous tense and present past perfect continuous tense, future perfect continuous tense and future continuous tense. You should note down it very clear.
Is it clear? Okay, Shalu Srivastav, thank you. Is it clear? दिव्यांशी वर्मा, थैंक यू. गुड. अब आप कभी भी कोशिश मत करिए कि ये 4 टेंस को आप पैसिव में चेंज मत करिएगा, बिकॉज यू कैनॉट चेंज दीज टेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. ओनली 8 टेंसेस यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस. इसको मैं यहीं पे रब कर देता हूं डियर. Okay. Now, one more important. Subject in active and object in passive. Okay. Subject. देखिए पहले ये सब चीजें जानेंगे, उसके बाद में ही आप करेक्ट और सही तरीके से पैसिव वॉइस को चेंज कर पाएंगे. डायरेक्ट आप एक्सरसाइज में घुस जाएंगे, देन यू कांट डू अ लॉन्ग टाइम. थोड़े एक शॉर्ट टाइम के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक और माइंड में इसकी रूट को रखने के लिए हमको इसकी रूट को समझना होगा. तो सब्जेक्ट इन एक्टिव. एक्टिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट होगा? और ऑब्जेक्ट वही बन जाता है पैसिव में. ऑब्जेक्ट in passive. Subject I becomes me, we, us, they. इनको नोट कर लीजिएगा. them, it, he, him, she, her, and who, whom, and you. You is you. This is the objective case and this is the subjective case. Please note down it very sincerely. गुड इवनिंग अभिषेक यादव, आप लेट हो गए क्लास में. चलिए नोट करिए इनको आप लोग. ओके नोटेड. कैन आई रिपीट? मिटा दूं इसको. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? इज इट क्लियर इन योर माइंड आल्सो? आर यू गेटिंग इट प्रॉपरली? ओके सनु श्रीवास्तव, थैंक यू. Now
how to convert active into passive, now we will learn. एक चार्ट के थ्रू, वेरी इंटरेस्टिंग एक चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा यार. This is active सेंटेंस होगा यहाँ पर, और ये हमारा पैसिव होगा. इस चार्ट को अगर आपने समझ लिया, then you will become the master of active and passive voice. This is very wonderful chart. If you will try to understand this chart in your mind, in the bucket of your mind, you will never forget it. देखिए, मैं थोड़ा सा एक ट्रिक से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. You people are graduate, post graduate, it doesn't mean whatever you are doctorate, but do you know the techniques that how to tackle the situation in the examination? देखिए, स्मार्ट वर्क करिए आप लोग. The pupil hard worker only gets those things which smart worker are leaving. जो स्मार्ट लोग छोड़ देते हैं वही हार्ड वर्क वाले को मिलता है. सो हार्ड वर्क तो करना है, बट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डू योर स्मार्ट वर्क. दिस चार्ट इज, दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में जनरली यही होता है. सपोज दैट ही राइट्स अ लेटर, तो ही हमारा यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, then subject, verb and object. Whenever you are changing it into passive voice, जब इसको आप passive voice में change करेंगे, then what you will do? Try to understand. This object will become the subject. Okay, and subject will become the object. ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस की बात हो रही है. इसमें एक चीज आपकी ऐड हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब HV एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय देन ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को लेते हैं. ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट. ओके, फिर से लिखता हूं. यहां पे ही आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट्स आपका वर्ब हो गया, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट. देखिए, बहुत क्लियर, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हैं. इट्स वेरी वंडरफुल. अब ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं, अ लेटर. अ लेटर, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होगा, तो हमारा सिंगुलर है लेटर, तो इज. वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, देन इज रिटेन प्लस बाय. ही का ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है. सेंटेंस इज 100% करेक्ट. A letter is written by him. Try to understand this. Very wonderful, very exciting. If you know this chart, you can anytime tackle the situation. You can anytime solve this question in your any types of exam.
Thank you. Try to do it first, then we'll proceed the class. क्लियर है? देखेंगे कौस्तुभ। शालू श्रीवास्तव, थैंक यू। तनु किरण, नोटेड, ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप सभी लोग करिए। कौस्तुभ, आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली? आप देख रहे हैं क्लास को या कहीं बिजी हैं? मास्टर कौस्तुभ, वरुण पाठक, क्लियर, ओके। दिव्यांशी वर्मा, थैंक यू। शालू श्रीवास्तव, ओके। नरसिंह, अंकित यादव, संजय त्रिपाठी जी, ये एक तरह की आपकी अटेंडेंस भी है। प्रभाकर यादव, नोटेड, ओके। सौरभ सिंह, स्वाति मिश्रा जी, इट इज क्लियर। गुलिस्ता परवीन, ओके। सौरभ सिंह, अनामिका यादव, थैंक यू, थैंक यू। मोहम्मद फिरोज, गुड, नोटेड। ओके, तो क्यों ना मैं इसको आगे प्रोसीड करूं और इस चार्ट को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। हाँ जय शुक्ला, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? प्रोसीड करता हूं क्लास को। देवी शंकर मिश्रा, ओके, थैंक यू, यू हैव नोटेड इट, देन आई एम गोइंग टू प्रोसीड द क्लास। सिंपल सी हम बात करते हैं। पहला जो हमारा टेंस था प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी writes a letter, okay. I write a letter। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, जब आप पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसको नोट करके आप रखिए। यू शुड नोट शी राइट्स ए लेटर। मैंने वही बताया कि पहले आप लेटर को ले लीजिए। आ लेटर सिंगुलर है तो इज, राइट का रिटेन, बाई, शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। दूसरा सेंटेंस आप देखिएगा, आई राइट अ लेटर, देन अ लेटर इज रिटन बाई मी। आई का ऑब्जेक्ट मी। आपको मैंने पहले ही इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है, एंड यू कैन कमेंट आल्सो। इज इट क्लियर? दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये भी पढ़ना है। तो नेगेटिव, इन नेगेटिव इट इज एम-आर प्लस नॉट, इज नॉट, ओके। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी।
In active, suppose somebody is writing, she does write a, she does not write a letter. Then a letter is not written by me, okay, by her. तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, इसको आप समझ सकते हैं. इसको इंट्रोगेटिव में इस एम आर स्टार्टिंग में लग जाएगा और वो नेगेटिव में नॉट लग जाएगा. आई थिंक इट इज क्लियर. चलिए इसी सेंटेंस को हम आगे लेते हैं, फिर से प्रोसीड करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिएगा आईएनजी फॉर्म होती है. आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो आपका इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग. इन कंटिन्यूअस बीइंग, ये पॉइंट याद रखिएगा. बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपली इसको आप लोग चेंज करिए. आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको चेंज करिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल. आप चेंज करके बताइए, मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में. ये लेटर वॉज रिटन कौन बता रहा है भाई? पास्ट टेंस की बात नहीं होगी. A letter was being written by me. Thank you, Sanjay Tripathi. Very wonderful. You are doing good. A letter is being written by me. इसका अगर नेगेटिव होगा तो लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय यू. एंड इन इंट्रोगेटिव इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी. इजली है, बहुत ही इजी है. आप इसके सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इस रूल पे. Then you can change any sentence of present continuous tense. Note it. इसी तरह से हम चेंज करते हैं. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. She has written a letter. Okay, check it. Then subject plus has या have and been verb की थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट. देखिएगा ये सिंपली इट विल चेंज. इसको चेंज करिए. शी हैज रिटन अ लेटर, चेंज करिए. आई एम सेइंग इट इन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर. ओके,
being Sanjay Tripathi being, what is being here? A letter has been written by her. Good. Okay, if somebody will say he has written letters. If it is object is plural, then I will change. Letters have been written by him. इस पे फोकस दीजिए आप, पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट प्ले वेरी डोमिनेंट रोल. इसको मैं प्रोसीड करूं, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है. वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो वी शुड प्रोसीड इट. देखिएगा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा. और ऑलरेडी इन अ वेरी स्टार्टिंग आई टोल्ड यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता. तो यहां तक प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट होता है. चलिए, इसको कंप्लीट करते ही करते मैं कुछ इस पे एक दो क्वेश्चन रखता हूं कि आप क्या समझ रहे हैं. मैं 3 सेंटेंस देता हूं, इनको आप लोग सॉल्व करिए. ओके. दे प्ले cricket. They play cricket, number 1. Number 2, they sing a song. Okay. 3 नंबर पे she ओके. ये 4 सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. ठीक है. पहला है दे प्ले क्रिकेट. इसको चेंज करिए पैसिव वॉइस में. मैं धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव तरफ आ रहा हूं, आप इसको चेंज करिए. पहले दे प्ले क्रिकेट. Anybody else? लिखिए भाई, कोई लोग लिखिए इस पे. They sing a song. She is writing a book. He has done his work of English. आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आर यू गेटिंग मी और नॉट? डियर टेल मी. वीडियो कुछ पॉज हो रहा है. प्लीज रिस्पॉन्स.
आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग मी प्रॉपरली. आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है. कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आपका. ओके, इसको मैं कर देता हूं. आपका कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला. दे प्ले क्रिकेट. क्रिकेट इज प्लेड बाय देम. दे सिंग अ सॉन्ग. A song is sung by them. She is writing a book. A book is being written by her. He has done his work of English. His work of English has been done by him. क्या प्रॉब्लम है? It's very easy, very wonderful. Okay, this present tense is completed here. Present tense is completed here. Okay. In the next lecture, we will try to discuss past and future tense. Future and past tense, how to convert into passive voice. इसके बाद में हम आपको assumptions बताएंगे. Assumptions play a very dominant role in any competition. तो मुझे उम्मीद है आपने यहाँ तक इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा. और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु हैव दिस वंडरफुल क्लास. दिस क्लास ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो हम इसको प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट टाइम में स्टार्ट करेंगे. अगर आपको इसको प्रीवियस नॉलेज इन स्टार्टिंग में 2-1 क्वेश्चन करने के बाद इस क्लास को स्टार्ट करूंगा. और इसके बाद में जो एक्सेप्शंस की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में एक्सेप्शंस विल आल्सो बी क्लियर. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे बाई नहीं लगता है, विद लगेगा, ऑब्लाइज टू लगेगा, देन हाउ विल चेंज इट, लुक एट लगेगा. तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो पैसिव वॉइस में आते हैं. और एक एग्जांपल इस तरह से आपको आएगा, डू इट. डू इट इसका पैसिव वॉइस बनाइए. द सेंटेंस इज ओनली डू इट. डू इट का पैसिव वॉइस बनाइए. ये आपके लिए वर्क है. और इसको हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लिखिएगा कि हाउ विल चेंज द वर्ड डू इट. दिस इज अ सेंटेंस. इसका आप पैसिव कैसे चेंज करेंगे. इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं. आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एक्सेप्शंस टू क्रैक द नट ऑफ योर कॉम्पिटिशन. थैंक यू. टुडेज क्लास, आज हमारा टाइम यहीं पे ओवर होता है. द क्लास इज एंडेड एंड नाउ थैंक यू वेरी मच.
have this wonderful class of active intensive class. Thank you everybody.